ऐसे जैसे चबेरिया है। کیونکہ زاویار کو آخرکار ترس آ ہی گیا ہے تانیہ پہ۔ تانیہ کی یہی خواہش تھی کہ وہ زاویار سے شادی کر لے۔ زاویار بھی مان جاتا ہے۔ اب زاویار کیسے مانے گا؟ زاویار کے پاس تانیہ آتی ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، کہتی ہے کہ زاویار مجھے مت چھوڑو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ زاویار کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ تانیہ نے جو کیا ہے میری محبت میں ہی کیا ہے، اس لیے زاویار کہتا ہے کہ اب درِ نایاب تو میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، تو اس لیے میں تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ تانیہ کہتی ہے کہ زاویار تم واقعی سچ بول رہے ہو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ زاویار کہتا ہے کہ لیکن میں تم سے ایک شرط پہ شادی کروں گا تانیہ کہتی ہے تمہاری جتنی بھی شرطیں ہیں وہ ساری مجھے منظور ہے، تم پلیز مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا جس سے تم مجھ سے شادی کر لو گے۔ زاویار کہتا ہے کہ تانیہ تم اتنی مجھ سے محبت کرتی ہو کہ میں بھی مجبور ہو گیا ہوں، تم نے اتنا کچھ کر دیا ہے صرف میری محبت میں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تم مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو۔ تانیہ کہتی ہے کہ زاویار ہاں میں تم سے واقعی محبت کرتی ہوں، اللہ سوچو کوئی اپنے شوہر سے طلاق کیوں لیتا ہے، میں نے صرف تمہاری خاطر جنید سے بھی طلاق لی تھی۔ زاویار کہتا ہے کہ تمہیں حیدر کو دل سے قبول کرنا ہوگا، اس لیے میں تم سے شادی کروں گا۔ تانیہ کہتی ہے کہ زاویار میں حیدر کو دل سے قبول کر لوں گی، میرے دل میں بس یہی تھا کہ وہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے تاکہ میں اور تم ہنسی خوشی زندگی گزار لیں، لیکن اگر تمہاری یہی شرط ہے تو میں حیدر کو دل سے قبول کر لوں گی۔ زاویار کہتا ہے کہ ہم دونوں شادی کرنے سے پہلے ایک بار درِ نایاب کے گھر جائیں گے، درِ نایاب سے تم بھی معافی مانگو گی اور میں بھی معافی مانگوں گا۔ تانیہ کہتی ہے کہ زاویار مجھ سے یہ مت کرواؤ، جا کے اس سے معافی مانگ لو، سچ پوچھو تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، جو آنٹی نے مجھے کہا میں وہی کرتی رہی درِ نایاب کے ساتھ، اور آج مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے۔ زاویار اپنی ماں کو، اپنی بہن کو اور تانیہ کو مناتا ہے، کہتا ہے کہ آپ سب میرے ساتھ جائیں گے درِ نایاب کے گھر۔ زاویار کی بہن کہتی ہے کہ بھائی اتنی بھی کوئی بات نہیں ہو گئی، درِ نایاب کے ساتھ اتنا بھی برا نہیں ہم نے کیا۔ خیر یہ بات سنتے ساتھ زاویار کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، کیونکہ مجھے وہ ہر چیز یاد ہے جو ہم نے اس کے ساتھ کی تھی، تمہارے ساتھ جاؤں گی اور نایاب سے معافی مانگ کر آؤں گی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ اتنا غلط کیا تھا کہ ہمیں تب احساس ہی نہیں ہوا۔ دادی زندہ ہوا کرتی تھی تو درِ نایاب بہت خوش رہا کرتی تھی اور دادی بھی اس کی سائیڈ لے لیا کرتی تھی، لیکن جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد درِ نایاب کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں۔ درِ نایاب جنید سے بات کر رہی ہوتی ہے اور ماہم کا اور جنید کا حال چال پوچھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں درِ نایاب کا دروازہ کھٹکتا ہے۔ درِ نایاب کہتی ہے کہ رکے جنید بھائی، مجھے لگتا ہے کوئی آیا ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ جنید کہتا ہے کہ درِ نایاب بھابی آپ فون کو چلتا رہنے دیں اور آپ دیکھ کر آ جائیں، کیونکہ ماہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ درِ نایاب فون آن ہی رکھ دیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ باہر کون آیا ہے۔ درِ نایاب دروازہ کھولتی ہے کہ زاویار اور زاویار کی ماں، اس کی بہن تانیہ سب آ جاتے ہیں۔ درِ نایاب کہتی ہے کہ آپ سب یہاں کیا کرنے آئے ہیں، تو درِ نایاب سے وہ سب معافیا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ درِ نایاب کو کہتی ہے کہ بیٹا ہم نے تم پہ اور جنید پہ جو الزامات لگائے وہ سارے جھوٹ تھے، یہ بات تم اور جنید تو جانتے تھے، لیکن آج زاویار کو بھی پتہ چل گیا ہے، تو پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو۔ زاویار بھی وہاں کھڑا رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ درِ نایاب مجھے معاف کر دینا، میں اچھا شوہر نہیں بن سکا تمہارے لیے، رشتے ہی بھول جائیں گے۔ اس سے پہلے تو تانیہ جاتی ہے جنید کے پاس، کیونکہ جنید نے شادی کر کے لے کے جانا ہے ماہم کو، اور وہ لے کے جا بھی چکا ہے۔ راستے میں تانیہ اس کو مل جاتی ہے، کہتی ہے کہ تم خوش ہوگے نا جنید، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے کہ زاویار تو مجھے کبھی ملے ہی نہ، تمہاری خواہش پوری ہو چکی ہے، زاویار نے مجھے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا ہے، اب میں اپنے پرانے گھر میں ہی رہتی ہوں۔ یہ بات سن کے جنید خوش ہو جاتا ہے، مسکرانے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف زاویار کو احساس ہو گیا ہے کہ درِ نایاب بہت اچھی لڑکی تھی اور زاویار نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ زاویار درِ نایاب کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ نایاب مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں،
प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तानिया के चक्रों में लग के तुम्हें भूल चुका था और तुम्हें बहुत गलत समझने लग गया था। तुरे नायाब कहती है कि ज़ावियार अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब माफी मांगने का क्या फायदा है। हमारे बेटे हैदर पे बहुत गलत असर पड़ चुका है, न जाने तानिया उसके साथ क्या कुछ नहीं करती होगी जो उसने आखिरकार घर से ही निकाल दिया मेरे बेटे को। ज़ावियार को एहसास हो जाता है, कहता है कि दुर्रे नायाब मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन तानिया ने मेरे दिमाग में बहुत गलत बातें डाल दी जिसकी वजह से मैं तुमसे नफरत करने लग गया था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। दुर्रे नायाब के पास ज़ावियार की माँ जाती है, कहती है कि दुर्रे नायाब बेटा मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इतना बुरा किया है कि आज मुझे एहसास हो रहा है अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करती तो आज तुम्हारा घर भी बसा होता और ज़ावियार तुमसे मोहब्बत करता। मैं ही थी जिसने तानिया को ज़ावियार की जिंदगी में ले आई थी और तुम्हें निकाल दिया था। तुरे नायाब कहती है कि कोई बात नहीं आंटी, आपने अच्छा ही किया था। अगर ज़ावियार अच्छा इंसान होता तो वो कभी भी तानिया की बातों पे यकीन ना करता। दूसरी तरफ तानिया भी पागल हो गई है, क्योंकि तानिया के पास अब कुछ भी नहीं बचा। तानिया ने जुनैद से तलाक ली थी कि ज़ावियार उसको अपना लेगा और ज़ावियार इससे मोहब्बत करने लगेगा, लेकिन तानिया के तो सारे प्लान ही खराब हो गए। तानिया का अब कोई भी नहीं बचा। तानिया ने सोच लिया है कि वो इस मुल्क से ही दूर चली जाएगी, क्योंकि जब जब वो यहाँ रहेगी उसको ज़ावियार की याद सताती रहेगी। तानिया कहती है कि देखो मुझे माफ़ कर दो दुर्रे नायाब, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दुर्रे नायाब कहती है कि तानिया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुमसे मिलना है, क्योंकि तुम इतनी घटिया औरत हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने और आंटी ने मिलकर मेरा घर बर्बाद किया है। अगर तुम मेरा साथ देती तो कोई भी मेरा घर बर्बाद ना कर सकता। मान लिया कि मेरे घर वाले भी ऐसे थे, मेरी भाभी भी बहुत बुरी थी, लेकिन तुम्हें मैंने अपनी बहन समझा था। मैं समझती थी कि तुम मेरा ख्याल रखोगी। इस तरह मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, उसी तरह तुम भी मुझे अपनी बहन मानती होगी, लेकिन तुमने जो जो मेरे साथ किया है उसकी माफ़ी देना बहुत मुश्किल है। तानिया कहती है कि दुर्रे नायाब आज मैं तुमसे माफ़ी लेके ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है किसी का घर बर्बाद कर देने से अपना घर नहीं बस सकता। तानिया की ये बात सुन के दुर्रे नायाब समझ आती है कि तानिया बहुत बेबस हो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दुर्रे नायाब कहती है कि ठीक है तानिया, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तानिया खुशी के मारे दुर्रे नायाब को गले से लगा लेती है और कहती है कि दुर्रे नायाब मुझे दिल से माफ कर देना, क्योंकि अब मैं दोबारा तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। ज़ावियार को भी आखिरी बार बुलाती है तानिया, कहती है कि ज़ावियार मैं ये मुल्क छोड़ के जा रही हूँ, मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। ज़ावियार भी आ जाता है और कहता है कि तानिया कसूर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी माँ का था। अगर वो दुर्रे नायाब का साथ देती और तुम्हारी बातों में ना आती तो आज मेरा घर बसा होना था। तानिया कहती है कि ज़ावियार जाते जाते मैं तुम्हें हर एक बात बताना चाहती हूँ जो जो तुम्हारी माँ ने किया दुर्रे नायाब के साथ। तानिया हर एक बात बता देती है, शुरू से लेके एंड तक, जो जो इन दोनों ने मिलके किया था दुर्रे नायाब के साथ। ज़ावियार कहता है कि ये तुम जो जो बता रही हो मुझे तो सुन के हैरत हो रही है। तानिया सब कुछ बता देती है, कहती है कि मैंने जो तलाक ली जुनैद से वो भी तुम्हारी माँ की वजह से ली मैंने, क्योंकि वो कहती थी कि तुम जुनैद से तलाक लो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी ज़ावियार के साथ। और जो जो दुर्रे नायाब के साथ हमने किया, दुर्रे नायाब पे इल्ज़ामात लगाए, वो सारा कुछ तुम्हारी माँ ने कहा था। ज़ावियार सुन के रोने लगता है, कहता है कि तानिया मैं तो पागल हो रहा हूँ, दुर्रे नायाब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन किस तरह माफ़ी मांगू। मैं गया था उसके पास लेकिन उसने मुझे माफ़ नहीं किया और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो माफ़ क्यों करेगी मुझे, क्योंकि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है।
उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं था मेरे सिवा, और मैंने ही उसको छोड़ दिया। मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि यहाँ पे मेरी माँ है जो मेरे साथ इतना बुरा करती रही। मुझे लगता था कि वो जुनैद से प्यार नहीं करती, लेकिन आज मालूम हुआ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मेरा घर बर्बाद कर दिया उन्होंने, और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, और ज़ावियार खुदकुशी करने वाला है। तो आखिरी किस्त में यही होगा कि ज़ावियार खुदकुशी कर लेता है। कहता है कि इस दुनिया में रहने का मेरा दिल नहीं करता जहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं है। दुर्रे नायाब मेरी अपनी हुआ करती थी, जिसको मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, सबने मिलके दूर कर दिया, और मेरा कोई भी नहीं है। तानिया कहती है कि देखो ज़ावियार, तुम खुदकुशी मत करना, ये बहुत गलत बात है। मैं भी तो हूँ, मैं भी ये मुल्क छोड़ के जा रही हूँ, तुम भी कहीं और चले जाओ अपने घर वालों को छोड़ के, लेकिन अपने साथ कुछ भी गलत ना करना, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। इन सब मामलात के बाद भी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और इसलिए तुमसे दूर जा रही हूँ ताकि मैं तुम्हें भुला सकूँ। दुर्रे नायाब जुनैद को फ़ोन करती है और बताती है कि जुनैद भाई, मेरे पास तानिया भी आई थी माफ़ी मांगने के लिए, ज़ावियार भी आया था, और आपकी वालिदा भी आई थी। उन्होंने कहा कि वो मान चुकी हैं कि जो जो उन्होंने गलतियां की हैं वो सब गलत था। जुनैद कहता है कि भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इन सबको अचानक हो क्या गया है। फिर दुर्रे नायाब कहती है कि देखो जुनैद, अच्छा हुआ इन सबको एहसास हो गया है अपनी गलतियों का। जुनैद कहता है कि मुझे लगता है कि ज़ावियार भाई वाकई ही एहसास में है, क्योंकि उन्हें कभी भी एहसास नहीं हुआ, और अगर आपके पास वो आए हैं तो बात ज़रूर ख़राब है। किसी को ये नहीं मालूम कि ज़ावियार तो खुदकुशी करने की तैयारियों में है, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब ज़ावियार खुदकुशी करने की सोच लेता है और वहां से उठ जाता है खुदकुशी करने के लिए, तो ऐन वक्त पे ज़ावियार को फोन कर देती है दुर्रे नायाब। कहती है कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं आप अपने साथ कुछ गलत ना कर लें। ज़ावियार ये सुन के रोने लगता है और कहता है कि दुर्रे नायाब, मैं वाकई ही खुदकुशी करने जा रहा था, तुम्हें कैसे पता लगा है? दुर्रे नायाब कहती है कि देखें ज़ावियार, आप ये बिल्कुल भी मत करें, हमारे बेटे हैदर मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे हैदर को उसके बाप की कमी महसूस हो, तो अगर आप किसी के लिए नहीं जीना चाहते तो हमारे बेटे हैदर के लिए जी लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो किसी को ये बताए कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं है। ज़ावियार भी सोचता है इस बारे में और मान जाता है दुर्रे नायाब की बात, और कहता है कि ठीक है दुर्रे नायाब, मैंने हैदर का तो सोचा ही नहीं कि उसका तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है। मैं हैदर का अपने बाप जैसा बाप नहीं बनूंगा, बल्कि बहुत अच्छा बाप बनूंगा जो कि उसका साथ दूंगा। और तुम्हें भी यही कहता हूँ कि मेरी माँ जैसी माँ बिल्कुल भी मत बनना। जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुम ऐसा कुछ भी ना करना। दुर्रे नायाब भी रोने लगती है, क्योंकि वो भी ज़ावियार को बहुत पसंद करती थी। वो ज़ावियार ही था जिसने तानिया की बातों में आके इसको तलाक दे दी। दुर्रे नायाब कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, और आपने अब दोबारा खुदकुशी करने का नहीं सोचना, क्योंकि ये हराम है। दुर्रे नायाब की बात मान लेता है ज़ावियार। दूसरी तरफ जुनैद और माहम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जुनैद और माहम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। माहम को बिल्कुल भी एतराज़ नहीं हुआ कि जुनैद पहले से शादीशुदा था। माहम समझती है हर बात को, और जुनैद कहता है कि मुझे तो लड़कियों पे एतबार ही नहीं था। जब से माहम मेरी ज़िंदगी में आई है, तब मुझे लगता है कि हर लड़की बहुत अच्छी होती है। दुर्रे नायाब कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मेरी बहन माहम बहुत अच्छी है, और आप दोनों हमेशा खुश रहे। ये ड्रामा बहुत अच्छा था, लेकिन आखिरी किस्त में ऐसा होने वाला है कि आप सबके दिलों में और ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी दिले नादान ड्रामा की, क्योंकि सब यही चाहते थे कि ज़ावियार और दुर्रे नायाब की आपस में सुलह हो जाए। ऐसा ही होने वाला है। ज़ावियार को सारी हकीकत
हकीकत पता चल चुकी है और ज़ावियार को ये भी पता चल चुका है कि ज़ावियार के घर वाले उसके दुश्मन हैं। ज़ावियार ये समझता था कि इसके घर वाले जुनैद के दुश्मन हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब ज़ावियार को पता चल चुका है कि वो जुनैद के दुश्मन नहीं बल्कि ज़ावियार के दुश्मन हैं, जिन्होंने ज़ावियार का घर बर्बाद कर दिया। ज़ावियार को अपनी माँ पे बहुत ज्यादा यकीन था और एतबार था, वो कभी भी ज़ावियार के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। ज़ावियार कहता था कि मुझे ये लगता है कि आप मेरे साथ हैं तो पूरी दुनिया मेरे साथ है और आप मेरा कभी भी बुरा नहीं होने देंगी। ज़ावियार को जब हकीकत का पता चल गया कि उसकी माँ ने क्या क्या चालें चली थी दुर्रे नायाब के खिलाफ और जुनैद का और दुर्रे नायाब का चक्कर भी चलवा दिया, सिर्फ इसलिए कि ज़ावियार दुर्रे नायाब को तलाक दे के इस घर से निकाल दे। ज़ावियार को जब ये सारी बातों का इल्म होता है तो ज़ावियार कहता है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ये करेंगी और अब मैं खुदकुशी करने वाला हूँ। ज़ावियार को ये बात समझ आ गई है कि दुर्रे नायाब अब इसके घर वापस नहीं आएगी क्योंकि ये इसको तलाक दे चुका है और ज़ावियार कहता है कि इस दुनिया में रहने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, मैं तो मर ही जाऊंगा। अगली आने वाली किस्त में ज़ावियार की मौत है दोस्तों। तानिया जाती फिरेगी कभी दुर्रे नायाब के पास तो कभी जुनैद को फोन करके कहेगी कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि तानिया बहुत बेसुकून रहने लगी है। दुर्रे नायाब के पास जाती है और उसे कहती है कि दुर्रे नायाब तुम मेरी बहनों की तरह हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अब देखो मैं तन्हा रह गई हूँ, ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। नायाब कहती है कि तानिया तुमने जो जो मेरे साथ किया मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन जो जो तुमने मेरे बेटे हैदर के साथ किया है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से उसको ना माँ का प्यार मिल सका ना ही बाप का प्यार मिल सका। अगर तुम ये सब ना करती तो मेरा बेटा हैदर माँ बाप के साथ खुशी के साथ जिंदगी गुजारता। नायाब जाती है कि आगे ज़ावियार आ जाता है। ज़ावियार कहता है कि नायाब मैं समझ चुका हूँ कि सारा कसूर मेरे घर वालों का है, तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं था, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। नायाब ये सुन के परेशान हो जाती है। जुनैद भी वहाँ मौजूद होता है क्योंकि जुनैद की शादी हो चुकी है महम से। जुनैद कहता है कि ज़ावियार भाई आप मेरे भाई हैं, प्लीज आप खुदकुशी मत करिएगा, क्योंकि मैं आपकी तरह का नहीं हूँ जो आपकी कोई बात ही ना सुनूं और आप पे इल्जामात लगा दूं। बात आप भी जानते हैं कि तानिया बचपन ही से आपको पसंद करती थी और आपसे शादी करना चाहती थी। मैं मानता हूँ कि उसने ये सारा कुछ आपकी मोहब्बत में किया, लेकिन दुर्रे नायाब भाभी का कोई भी कसूर नहीं था। आपने मुझे और दुर्रे नायाब को इतना गलत बोला और हम पे इतने इल्जामात लगाए कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जुनैद की ये बातें सुन के ज़ावियार कहता है कि जुनैद ये सारा कुछ तुम जो जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, इसलिए मैं अब खुदकुशी करने वाला हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में रह ही नहीं सकता। तो जो मैंने तुम्हारे साथ किया दुर्रे नायाब के साथ किया ना काबिले माफी है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं दुर्रे नायाब तुमसे माफी नहीं मांगने आया बल्कि तुम्हें ये कहने आया हूँ कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। हैदर से मैं बहुत प्यार करता हूँ और हैदर के लिए ही मैं जीता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैंने तो हैदर के साथ भी अच्छा नहीं किया। हैदर की माँ उससे दूर कर दी, हैदर का बाप भी उससे दूर कर दिया। न जाने तानिया कितना मारती होगी मेरे बेटे हैदर को, जब वो रोता था तो वो उसको चुप भी नहीं करवाती थी। ये सारी बातें तो मुझे अब पता लग रही हैं। अब यार हैदर से भी माफी मांगता है, कहता है कि मेरे बेटे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अच्छा बाप नहीं बन सका, ना ही मैं अच्छा शोहर बन सका और ना ही मैं अच्छा बेटा बन सका, क्योंकि मुझे लगता था कि सब घर वाले जुनैद से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए जुनैद और तानिया पे इल्जामात लगाती रही मेरी माँ। लेकिन पता तो अब चल रहा है कि वो मुझसे नफरत करती थी, इसलिए मुझसे मेरी बीवी दुर्रे नायाब दूर कर दी। न जाने ये लोग मुझसे क्या ही चाहते थे। खैर जुनैद और माहम दोनों शादी करके बाहर चले गए हुए हैं। जुनैद कहता है कि दुर्रे नायाब भाभी अब मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे पास ही आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई भी नहीं रहा, आप और हैदर दोनों यहाँ पे आ जाए। दुर्रे नायाब भी मान जाती है, हंसी खुशी हैदर के साथ जिंदगी गुजारगी जो उसने आखिरकार घर से ही निकाल दिया मेरे बेटे को। ज़ावियार को एहसास हो जाता है
कहता है कि दुर्रे नायाब, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन तानिया ने मेरे दिमाग में बहुत गलत बातें डाल दी, जिसकी वजह से मैं तुमसे नफरत करने लग गया था। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। दुर्रे नायाब के पास जावियार की माँ जाती है, कहती है कि दुर्रे नायाब बेटा, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इतना बुरा किया है कि आज मुझे एहसास हो रहा है, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करती तो आज तुम्हारा घर भी बसा होता और जावियार तुमसे मोहब्बत करता। मैं ही थी जिसने तानिया को जावियार की जिंदगी में ले आई थी और तुम्हें निकाल दिया था। तुरे नायाब कहती है कि कोई बात नहीं आंटी, आपने अच्छा ही किया था। अगर जावियार अच्छा इंसान होता तो वो कभी भी तानिया की बातों पे यकीन ना करता। दूसरी तरफ तानिया भी पागल हो गई है, क्योंकि तानिया के पास अब कुछ भी नहीं बचा। तानिया ने जुनेद से तलाक ली थी कि जावियार उसको अपना लेगा और जावियार इससे मोहब्बत करने लगेगा, लेकिन तानिया के तो सारे प्लान ही खराब हो गए। तानिया का अब कोई भी नहीं बचा। तानिया ने सोच लिया है कि वो इस मुल्क से ही दूर चली जाएगी, क्योंकि जब जब वो यहाँ रहेगी उसको जावियार की याद सताती रहेगी। तानिया कहती है कि देखो, मुझे माफ़ कर दो दुर्रे नायाब, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दुर्रे नायाब कहती है कि तानिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुमसे मिलना है, क्योंकि तुम इतनी घटिया औरत हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने और आंटी ने मिलके मेरा घर बर्बाद किया है। अगर तुम मेरा साथ देती तो कोई भी मेरा घर बर्बाद ना कर सकता। मान लिया कि मेरे घर वाले भी ऐसे थे, मेरी भाभी भी बहुत बुरी थी, लेकिन तुम्हें मैंने अपनी बहन समझा था। मैं समझती थी कि तुम मेरा ख्याल रखोगी। इस तरह मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, उसी तरह तुम भी मुझे अपनी बहन मानती होगी। लेकिन तुमने जो जो मेरे साथ किया है उसकी माफ़ी देना बहुत मुश्किल है। तानिया कहती है कि दुर्रे नायाब, आज मैं तुमसे माफ़ी लेके ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है किसी का घर बर्बाद कर देने से अपना घर नहीं बच सकता। तानिया की ये बात सुन के दुर्रे नायाब समझ आती है कि तानिया बहुत बेबस हो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दुर्रे नायाब कहती है कि ठीक है तानिया, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तानिया खुशी के मारे दुर्रे नायाब को गले से लगा लेती है और कहती है कि दुर्रे नायाब, मुझे दिल से माफ कर देना, क्योंकि अब मैं दोबारा तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। जावियार को भी आखिरी बार बुलाती है तानिया, कहती है कि जावियार, मैं ये मुल्क छोड़ के जा रही हूँ, मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। जावियार भी आ जाता है और कहता है कि तानिया, कसूर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी माँ का था। अगर वो दुर्रे नायाब का साथ देती और तुम्हारी बातों में ना आती तो आज मेरा घर बसा होना था। तानिया कहती है कि जावियार, जाते जाते मैं तुम्हें हर एक बात बताना चाहती हूँ, जो जो तुम्हारी माँ ने किया दुर्रे नायाब के साथ। तानिया हर एक बात बता देती है, शुरू से लेके एंड तक, जो जो इन दोनों ने मिलके किया था दुर्रे नायाब के साथ। जावियार कहता है कि ये तुम जो जो बता रही हो मुझे तो सुन के हैरत हो रही है। तानिया सब कुछ बता देती है, कहती है कि मैंने जो तलाक ली जुनेद से, वो भी तुम्हारी माँ की वजह से ली मैंने, क्योंकि वो कहती थी कि तुम जुनेद से तलाक लो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी जावियार के साथ। और जो जो दुर्रे नायाब के साथ हमने किया, दुर्रे नायाब पे इल्जामात लगाए, वो सारा कुछ तुम्हारी माँ ने कहा था। जावियार सुन के रोने लगता है और कहता है कि तानिया, मैं तो पागल हो रहा हूँ, दुर्रे नायाब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन किस तरह माफ़ी मांगू। मैं गया था उसके पास, लेकिन उसने मुझे माफ़ नहीं किया और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो माफ़ क्यों करेगी मुझे, क्योंकि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है। उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं था मेरे सिवा, और मैंने ही उसको छोड़ दिया। मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि यहाँ पे मेरी माँ है जो मेरे साथ